वेलकम टू द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर चेयर पटना यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है कि हम ये 4 वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं एंड दिस सीरीज हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय बुद्धिवादी फाउंडेशन एंड कंडक्टेड बाय पटना डायरेक्ट। तो आज की श्रृंखला के ये जो श्रृंखला है उसके दूसरे वेबिनार का टॉपिक है सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष। और अगर आपको वेबिनार के दौरान कोई भी प्रश्न पूछना है तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हम अंत में उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हमारे जो आज विषय प्रवेश देने जा रहे हैं वो है डॉक्टर डीपी मांझी, डायरेक्टर डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, न्यू दिल्ली से। तो मैं डॉक्टर डीपी मांझी का स्वागत करती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि कृपया विषय प्रवेश दें। Thank you. Hello everybody. Welcome to the webinar today organized by the Patna University Department of Philosophy. And thanks to, at the beginning, I would extend my sincere thanks to the COVID-19 situation, the pandemic situation, because of which there is a flood of webinars organized by different academic institutes, including our chairs. And I thank the newly joined chair professor, Professor Nath, and the research officer, Dr. Ules Maji, for this for organizing this webinar today. And though this chair at Patna University is a new chair, like it started in 2016, but there was less academic activities, and perhaps this is the first seminar or the webinar that is being organized. And for that, we are thankful to the chair professor, the research officer, and the vice chancellor also, who spoke to me. And he was so enthusiastic. He wanted to just revive the chair, and we are very, very thankful to the chair and the VC also. I would like to say that Dr. Ambedkar Foundation, it was like, it started in 1992. So just completed a couple of years back, we completed a silver jubilee year. So we have 21 chairs at the moment and 2 chairs in the pipeline. So different chairs have been assigned different thrust areas. And on the basis of Dr. Ambedkar's thoughts and ideologies, as you know, Dr. Ambedkar was an erudite personality having different domains of knowledge. And he used to give a different perspective to the knowledge. It was not a rudimentary kind of knowledge. He used to give different directions. And out of these 21 chairs, Patna chair happened to be one of the chairs. And we are very happy. And I can see many, many chair professors like Professor Gaikwad's name. I just saw flashing in the monitor of the computer. And he is also a very learned person, having a lot of knowledge about Dr. Ambedkar's perspectives and his thoughts and ideologies. As of the Dr. Ambedkar chair, so chair is just like a laboratory for us. And we used to put his thoughts and perspectives, ideologies into the chair, into the laboratory. And we expect that laboratory will produce something. And as a result, it will create some new dimensions or new synthesis on the existing knowledge. And by that process, I think we can go away from the narrative format of the Ambedkar's thoughts and process or the ideology to a new paradigm. So chairs has a, like all the chairs have a different and big role. And as far as the thoughts and ideology of Dr. Ambedkar is concerned, we have collected works of Dr. Ambedkar, popularly known as CWBA. We have 17 volumes in English and 40 volumes in Hindi. And those volumes are being translated to different regional languages. Like at the moment, we have assigned chairs, 8 chairs to translate and get it published. All those thoughts and ideologies of Dr. Ambedkar, and they are in the different stages. But English, Hindi volumes we have completed last year. About the topic today for the webinar, that is सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर आम्बेडकर की संघर्ष. To my mind, Dr. Ambedkar's life as such, it was entirely full of struggles, sangharsh. It was not confined to samajik nyaya only. Sangharsh was, I think, pedagogy for his accumulation of huge heaps of knowledge. Means he used to interact, as I said in the beginning, thesis, antithesis, and synthesis. And as many of the professors, the chair professors and the academicians and the stakeholders must be knowing about the conflict theory, like how Dr. Ambedkar perceived the things. Suppose I'm just giving one example. A book is on the surface of the table. A person may observe it, that book is there because of the cooperation with the surface of the table. If you go by the conflict approach, sangharsh approach, means the book is putting its weight because of the gravitational force, it is getting attracted toward the center of the earth. And as per the Newton's third law,
it is third law is applied means reaction. So because of the conflict of the both, they are staying. So one incident has different perspectives, and Dr. Ambedkar's pedagogy, his way of observing things was bit different from Karl Marx, but it was combination, is a balancing act of cooperation and conflict. Like he cannot take it for granted. Suppose the popular rudimentary belief is there, it is because of the cooperation. But Dr. Ambedkar thought, no, it may be cooperation, but elements of conflict is there. So we cannot live as it is. We have to see a different dimensions, different pedagogy. So take the example of that Mahad Satyagraha or the temple entry. There is a popular belief that somebody asked Dr. Ambedkar that you are against the temple entry, you are against the Hinduism, you are against the ritualistic way of Hinduism. But then why do you so much aspiring or encouraging the people for the temple entry? He said, this is not the question of entering into the temple. This is question of asserting your eyes. So see the reasoning. Same act. Everybody will see that this person is no reasoning. But see his reasoning. This is, I am asserting my right. This was his reasoning. This was his struggle. This was his pedagogy. And today, I think this is not a lecture series. I must not be speaking much. And I came to know that more than 100 participants are there throughout the country, every corner of the country. It is very encouraging fact. And many chair professors must be online. They will be sharing their views. And my only request will be, instead of studying Dr. Ambedkar in narrative forms, it must be a struggle to peep into his thoughts. Struggle means finding out a reason why he said so. What was the circumstances? What are the situational constraints? See, throughout his life, he faced the constraints, whether it is in the Columbia University, whether they are in the library, whether at the London School of Economics when he submitted his thesis. There was a lot of pressure to change the things. When it was the Jat Paat, that Todak, calling for the paper in the Lahore, the paper, he was, at the last moment, he was not allowed to speak, but he never gave up. This is struggle. This struggle is not like the physical struggle, the normal narratives. This is struggle. So again, I thank Professor Nath and Dr. Hules Panji and the Vice Chancellor, and I welcome all of you. And let there be deliberations, let there be exchange of ideas, let the synthesis come in the form of new pedagogies, new ideologies, new thoughts. Thank you once again. All the best. Thank you so much, sir, for sharing your thoughts with us. Now I would like to invite Dr. Ramendra, Chair, Professor Ambedkar Chair, and HOD Department of Philosophy, Patna University, to share his thoughts. थैंक यू डॉक्टर दीपी मांशी। ये हमारा पहला वेबिनार लास्ट सैटरडे जो था वो थेरवाद बुद्धिज्म और नियो ह्यूमनिज्म बुद्धिज्म के बीच अंतर पे था। ये वेबिनार बेसिकली डॉक्टर अम्बेडकर के लाइफ पे है, लेकिन उनके सेलेक्टेड इवेंट्स हमारे स्कॉलर्स बताएंगे। तो इसको सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष, उनके जीवन के बारे में है। ताकि मेरी एक मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट है कोलैबोरेशन विद डॉक्टर कविल, rationalism, humanism and atheism in 20th century Indian thought। इसमें 8 थिंकर्स डिस्कस हुए हैं, तो पेरियार, एम.एन. रॉय, इसके अलावा डॉक्टर आम्बेडकर पर भी इस पर एक चैप्टर है और उसको उसकी का हिंदी रूपांतर भी हुआ है, डॉक्टर आम्बेडकर जीवन और विचार, पब्लिश्ड बाय तेजवाद फाउंडेशन। तो अभी हम अपनी किताब से, यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑथर रीडिंग ऑफ द बुक, ओनली द सेलेक्टेड पोर्शंस जो कुछ आपको पढ़कर बताएंगे कि आम्बेडकर को अपने जीवन में किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। ये मेरे लिए इस पर धनंजय की द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आम्बेडकर लाइफ एंड मिशन और एम.एस. कोरी द्वारा लिखी गई द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी, ये मेरे मेन सोर्सेज हैं इसके। सबसे पहले तो उनकी स्कूली शिक्षा से लें। आम्बेडकर ने अपनी स्कूली शिक्षा की शुरुआत वर्ष 1900 में सतारा के सरकारी हाई स्कूल से शुरू की।
अपने स्कूल के दिनों में अम्बेडकर को कई अपमानजनक अनुभवों से गुजरना पड़ा। इससे उन्हें यह बात समझ में आई कि छुआछूत के लांछन का क्या अर्थ है। अम्बेडकर उनके बड़े भाई मसूर रेलवे स्टेशन से गोरेगांव जा रहे थे। उन्होंने इसके लिए भाड़े पर एक बैलगाड़ी ले ली। अभी वे कुछ ही दूर गए होंगे कि सवार गाड़ीवान को यह बात समझ में आ गई कि उसकी गाड़ी में बैठे दो लड़के तथाकथित अछूत हैं। उसने गुस्से में आकर उन्हें सड़क पर फेंक दिया, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने उसकी लकड़ी की गाड़ी को प्रदूषित कर दिया है। अम्बेडकर और उनके भाई ने गाड़ीवान के गुस्से को दुगना भाड़ा देकर शांत किया। अम्बेडकर के बड़े भाई ने बैलगाड़ी चलाई और गाड़ीवान गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चलता रहा, क्योंकि उसे प्रदूषित होने का भय था। अम्बेडकर और उनके भाई को पूरे सफर में पीने का पानी भी नहीं मिल पाया। इसी तरह नाइयों ने प्रदूषण के डर से अम्बेडकर के बाल काटने से इनकार कर दिया। ऐसा गांधी के साथ साथ में किया था। अम्बेडकर की बहन उनके बाल काटा करती थी। इसके अलावा अम्बेडकर को स्कूल में सभी विद्यार्थियों से अलग बैठने के लिए बाध्य किया जाता था, क्योंकि उनका जन्म तथाकथित अछूत परिवार में हुआ था। वे अन्य बच्चों के साथ घुल मिलकर क्रिकेट और अन्य खेल नहीं खेल सकते थे। उनके शिक्षक उनकी कॉपियों को नहीं छूते थे। कुछ शिक्षक तो तथाकथित अछूतों से कविता पाठ करने को भी नहीं कहते थे या कोई प्रश्न भी नहीं पूछते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे वे प्रदूषित हो जाएंगे। 1904 में अम्बेडकर के पिता रामजी बम्बई चले आए। अम्बेडकर एलिफिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ने लगे। सतारा में अम्बेडकर को खेलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बम्बई में उन्हें ऐसा किसी प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ा। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हो ही जाती थी जिससे अम्बेडकर को यह महसूस होता था कि वे अछूत हैं। गैर अछूत हिंदू बच्चे अपने टिफिन डब्बे क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड के पीछे रखा करते थे। एक बार अम्बेडकर को ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए कहा गया। अम्बेडकर के सहपाठियों को यह डर था कि अम्बेडकर के ब्लैक बोर्ड के पास जाने से उनका भोजन प्रदूषित हो जाएगा। इससे पहले कि अम्बेडकर ब्लैक बोर्ड तक पहुंचते और उसे छूते, उनके सहपाठियों ने दौड़कर अपने टिफिन डब्बों को वहां से हटा लिया। जुलाई 1917 में डॉक्टर अम्बेडकर को महाराजा बड़ौदा का सैनिक सचिव बना दिया गया और उन्हें राज्य के वित्त मंत्री के पद के लिए तैयार किया जाने लगा। लेकिन उन्हें बड़ौदा में किसी होटल या हॉस्टल में रहने की जगह नहीं मिल पाई। उन्होंने अज्ञात रूप में एक पारसी होटल की शरण ली। उन्हें ऑफिस में भी ऐसे ही भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। चपरासी ऑफिस की फाइलों को उनकी टेबल पर फेंक दिया करते थे। ऑफिस में उन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। अपमानजनक घटनाएं उस समय अपने चरम पर पहुंच गईं, जब कुछ लाठीधारी पारसियों ने उन्हें पारसी होटल खाली करने के लिए बाध्य कर दिया। शहर में कोई हिंदू या मुसलमान उन्हें आसरा देने को तैयार नहीं था। यह सब अम्बेडकर के लिए असहनीय था। उन्होंने महाराजा को एक नोट लिखकर भेजा, लेकिन राज्य के दीवान ने इस संबंध में कुछ भी करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। आखिरकार अम्बेडकर 1917 में बड़ौदा छोड़कर बम्बई चले आए। बम्बई में अम्बेडकर ने सिडेनहैम कॉलेज ज्वाइन किया। नवंबर 1918 में अम्बेडकर ने बम्बई के सिडेनहैम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया। उन्होंने नवंबर 1918 से मार्च 1920 तक इस कॉलेज में काम किया। उनकी प्रसिद्धि फैलने पर दूसरे कॉलेजों के विद्यार्थी भी उनके लेक्चर सुनने के लिए आने लगे। फिर भी उनके प्रति सामाजिक व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ तथाकथित उच्च जाति के प्रोफेसरों के लिए आरक्षित घड़े में से अम्बेडकर को पानी पीने पर आपत्ति की। गांधी को दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या सामना करना पड़ा, इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन यह बड़े शर्म की बात है कि अम्बेडकर को वैसे ही या उससे भी बदतर व्यवहार का सामना स्वयं अपने देश में करना पड़ा। अब पटना यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम के स्कॉलर्स हैं, वो हमारे सामने अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के लिए एक एक करके अपना पक्ष रखेंगे।
तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी पूजा को, जो कि स्कॉलर हैं पीएचडी प्रोग्राम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी से, और वो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके में उच्च शिक्षा इसके बारे में हमारे सामने अपना अपना पक्ष रखें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं पूजा, रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे ऑर्गेनाइजर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज के विषय पर बोलने का। मेरा आज का टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके में उच्च शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षित होने वाले पहले, या हम कह सकते हैं भारतीय नेताओं में से एक थे। मुझे यकीन नहीं है कि न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके वर्षों में क्या प्रभाव पड़े होंगे, लेकिन मुझे पता है कि हम इस उल्लेखनीय आदमी की शुरुआती विकास के कुछ हिस्से पर दावा करने में गर्व महसूस करते हैं। गायकवाड़ शासक ने सन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर अध्ययन के लिए डॉक्टर अंबेडकर का चयन किया। साथ ही साथ उनको $11.5 प्रति मास की छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को राजनीतिक विज्ञान विभाग के स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दे दिया गया। शयनशाला में कुछ दिन रहने के बाद वे भारतीय छात्रों द्वारा चलाए जा रहे एक आवास क्लब में रहने चले गए। उन्होंने अपने एक पारसी मित्र नवल भादेना के साथ एक कमरा ले लिया। 1916 में उन्हें एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इस रिसर्च को अंततः उन्होंने बुक इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में पब्लिश किया। हालांकि उनका पहला प्रकाशित काम एक लेख है जिसका शीर्षक भारत में जाति, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास है। अपनी डॉक्टरेट की डिग्री लेकर सन 1916 में डॉक्टर अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने लीज इन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ का अध्ययन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट शोध की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवा लिया। अगले वर्ष ही छात्रवृत्ति की समाप्ति के चलते मजबूरन उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। एंड दिस वाज हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर अंबेडकर निराश हो गए और अपनी जॉब छोड़कर एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि अपनी परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सोशल कंडीशन के कारण विफल रही। अपने एक अंग्रेज जानकर मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनीम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनीम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के महाराजा अपने पारसी मित्र के सहयोग और अपनी बचत के कारण इंग्लैंड वापस जाने में सक्षम हो गए। 1923 में उन्होंने अपना शोध प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पूरा कर लिया। उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई और उनके कानून का अध्ययन पूरा होने के साथ ही साथ उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। भारत वापस लौटते हुए डॉक्टर अंबेडकर 3 मंथ के लिए जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। उन्हें औपचारिक रूप से 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी प्रदान की गई। धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट आराधना सिंह को इनवाइट करती हूँ ताकि वो आए और अपनी बात रखें, और वो हमारे सामने अंबेडकर के बॉम्बे सिटिंगहैम कॉलेज के बारे में हमसे बात करें। जी, थैंक यू मैम। और मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष और सिटिंगहैम कॉलेज के ऊपर बोलने का अवसर दिया। मेरा नाम आराधना सिंह है और मैं पटना विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग की शोध छात्रा हूँ। सामाजिक न्याय मानव कल्याण का एक सामाजिक दर्शन है जो समाज के प्रत्येक स्तर पर उचित और न्यायपूर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग व समूह के कमजोर लोगों के हितों की रक्षा व संवर्धन करना इसका प्रमुख लक्ष्य है।
सामाजिक न्याय की ऐसी ही अवधारणा का समर्थन डॉक्टर अंबेडकर भी करते थे। वे सामाजिक असमानता का जड़ वर्ण व्यवस्था को मानते थे। हमारे समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था के कारण सदैव उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के लोगों का शोषण व दमन किया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, जिसका दंश बाबा साहब को भी अपने जीवन में कई बार सहना पड़ा। बाबा साहब ने मुंबई में जब अपने जीवन को नए ढर्रे से डालने की कोशिश की, तब भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्टॉक और शेयर डीलरों को सलाह देने के लिए एक बिजनेस फर्म की स्थापना की थी, लेकिन उन्हें इसे अस्थायी रूप से बंद कर देना पड़ा क्योंकि कोई ग्राहक एक अछूत के पास सलाह लेने के लिए आने को तैयार नहीं था। नवंबर 1918 में बाबा साहब ने बम्बई के सिडेनहम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया। उन्होंने नवंबर 1918 से मार्च 1920 तक इस कॉलेज में काम किया। उनकी प्रसिद्धि इन्हीं सब कारणों से बाबा साहब अपने जीवन में सदैव सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए संघर्षरत रहे हैं। वे एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज का स्वप्न देखते थे जिसमें महत्ता और सामाजिक स्तर के मामले में सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। वे मानते थे कि एक व्यवस्था के भीतर समानता और बंधुत्व कायम करने की जरूरत होती है। चूंकि जाति व्यवस्था इन 3 बुनियादी तत्वों का उल्लंघन करती है, इसके कारण यह भारतीय समाज में न्याय के विचार का प्रमुख अवरोध है और इस अवरोध का एकमात्र उपाय कानून व्यवस्था की स्थापना है, जिसके द्वारा समाज के सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जा सकता है। और इसलिए संविधान के निर्माण में उन्होंने मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों पर विशेष बल दिया है। उनका मानना था कि मौलिक अधिकार प्रजातंत्र का आधार है। एक और उन्होंने लाखों प्रयत्न करके दलित समाज को तो मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया ही, साथ ही उन्होंने महिलाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ा तथा उनके लिए भी समान अधिकार, समान अवसर की बात की। बाबा साहब का यह मत था कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति के बिना नहीं हो सकती और यह तभी संभव है जब उन्हें शिक्षित, स्वतंत्र व स्वावलंबी बनाया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा साहब महान समाज सुधारक, न्यायविद, शिक्षाविद, दलितों के उद्धारक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। उनके ये महान विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू आराधना। अब मैं आमंत्रित करूंगी श्रुति परमार को, जो कि स्कॉलर है पीएचडी प्रोग्राम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी की, और वो महार सम्मेलन और सत्याग्रह के बारे में हमसे बात करेंगे। Good afternoon to all present here. I'm heartily thankful to Raman sir especially because he has providing me this opportunity to speak here among all the intellectuals. So before going to start my speech, today's my topic is महार सत्याग्रह और सम्मेलन, जो अंबेडकर जी का था, उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि अंबेडकर जी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और ये जो सम्मेलन था और ये जो उनका महार सत्याग्रह था, उनकी उस फिलॉसफी पर बेस था। जो उनका फिलॉसफी था कि फ्रीडम इन इंडिया वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन फ्रीडम ऑफ इंडिया। मीन्स कि जो आंतरिक बुराइयां है जो समाज के अंदर, अगर उसको हम लोग नहीं खत्म करते हैं तो बाहरी रूप से अगर किसी शासन से मुक्त भी हो जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसी फिलॉसफी को लेकर वो चलते हैं और यह सम्मेलन कहीं ना कहीं उसका ही रिजल्ट है। 20 मार्च 1927 को यह सम्मेलन हुआ था और ये हुआ था महाराष्ट्र के कोबाला डिस्ट्रिक्ट में, और इसका संचालन अंबेडकर जी ने किया था और एक और महान हस्ती थे रामाचंद्र बाबा जी मोरे। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर यह सम्मेलन किया और उस सम्मेलन का उद्देश्य था जागरूकता लाना। और जागरूकता लाना था इस सम्मेलन में उनका कि सामाजिक अधिकार के प्रति, ताकि समाज में जो उच्च वर्ग और नीच वर्ग के बीच में जो असमानता का खाई है उसको भरने के लिए जागरूकता लाना था इस सम्मेलन के द्वारा। और इसी कारण से यह सम्मेलन बुलाया गया था और इसमें 3 सूत्र उन्होंने दिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र था कि गंदे व्यवस्थाओं को छोड़ने के लिए। यह सूत्र मेनली दिया गया था उन लोगों को जो छुआछूत का दंश झेल रहे थे, उस नीच जाति के लोगों को दिया गया था, जो उस जाति के लोग उनके साथ छुआछूत का बर्ताव कर रहे थे, उन लोगों के लिए यह सूत्र था। तो उनसे अपील किए थे
अंबेडकर जी ने कि सबसे पहले तो आप गंदे व्यवसायों को छोड़िए। दूसरी अपील उन्होंने किया कि मरे हुए जानवरों को खाने की प्रथा को आप त्याग करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने सूत्र दिया, कहा कि उस मानसिकता को, एटीट्यूडनल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उन्होंने कहा कि उस मानसिकता को बदलिए कि यू आर अनटचेबल्स, और आप अछूत है। क्योंकि कोई भी परिवर्तन आप बाहरी चाहते हैं तो सबसे पहले उसका शुरुआत आपको स्वयं से करना होगा। जैसा कि हम लोग विवेकानंद की भी फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। तो अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो सोचो कि तुम स्ट्रांग हो। तो तुम आत्मसम्मान चाहते हो अगर लोगों से, तो तुम्हें सोचना होगा कि तुम अछूत नहीं हो। इस मानसिकता से तुम्हें मुक्त होना होगा पहले, तब तुम्हें बाहरी उस छुआछूत से मुक्ति मिलेगी। कुछ लोगों का समूह मिलकर 20 मार्च 1927 को वह लोग जो कि महाराष्ट्र के एक रायगढ़ जिला है, वहां के चौदार तालाब के पास जाकर उन्होंने पानी पीकर, और जो कि तालाब से मना थी पानी पीना नीच जाति के लोगों के लिए, तो उन्होंने पीकर और उस असमानता को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया। बहुत हद तक उससे समाज में एक क्रांति आया और बहुत हद तक वो कम हुआ। हमें सामाजिक क्रांति करनी पड़ती है, तो वह सामाजिक क्रांति यह सत्याग्रह था जो उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया। और इस सत्याग्रह के पीछे का कारण हम देखें तो उसका कारण था, एक तो समाज में फैली छूत की जो प्रथा चल रही थी वह था, और दूसरा कारण था कि इससे पहले वहां की मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो 1923 में ही ऐसा एक लॉ पारित किया था जो कि सभी वर्गों को समान रूप से जो भी सरकारी चीजें थी, चाहे वो स्कूल, तालाब, नदी, उस पर अधिकार दिया था। लेकिन वहां के उच्च वर्ग के लोग इसको नहीं मान रहे थे। तब जाकर यह क्रांति जो 1927 में हुआ। और हम लोग अगर इसके महत्व को देखेंगे कि उसका आज के समय में क्या महत्व है उस महाड़ सत्याग्रह का, तो उसका महत्व यह है कि समानता का दर्जा उन्नीस जाति के लोगों को मिला। जो हमारे संविधान में आर्टिकल 17 है वो उसमें लाया गया। ये हमारा मौलिक अधिकार देता है कि सभी लोग को समान रूप से अधिकार है, उस पे कोई भी जाति और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से उसका महत्व हम लोग देख सकते हैं आज के समय में भी। और तीसरा महत्व है कि 20 मार्च को आज के समय में हम लोग सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ हम लोग सार रूप में हम यही कहेंगे कि महाड़ सत्याग्रह जो था वो एक सामाजिक क्रांति था, और सामाजिक क्रांति ही कहीं ना कहीं राजनीतिक क्रांति और आर्थिक क्रांति को ले आती है, जिससे बड़ा परिवर्तन होता है। तो उसकी शुरुआत उस सामाजिक क्रांति से हुई और आगे चलकर राजनीतिक क्रांति हुआ, जहाँ पर लॉ आए जो हमारे आज के टाइम में समानता को ले आता है। तो हम यहीं पर रोकना चाहते हैं खुद को, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ललित कुमार को, जो कि स्कॉलर है पीएचडी प्रोग्राम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पटना यूनिवर्सिटी के, और वो हमारे सामने ये बात रखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। थैंक यू। आज की पटना यूनिवर्सिटी के अंबेडकर चेयर के सौजन्य से प्रारंभ की गई वेबिनार सीरीज के दूसरे आयोजन में मुझे मौका देने के लिए सबसे पहले मैं चेयर प्रोफेसर डॉक्टर रमेन सर और रिसर्च ऑफिसर कुलेश मांझी सर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के संघर्ष के रूप में उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण कार्य किया कि उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया। तो हम लोग के समक्ष ये मतलब प्रश्न उठता है कि आखिर उन्होंने मनुस्मृति को क्यों जलाया, उनको जलाने का कारण क्या हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर को एक महान विचारक, लेखक, दार्शनिक या कहें तो बहुत क्षेत्रों में उनका अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों से MA, PhD, DSc और डीलिट की उपाधि भी प्राप्त थी। इसके अलावा वे एक बहुत अच्छे बैरिस्टर भी थे। और डॉक्टर अंबेडकर को पुस्तकों से बहुत बड़ा लगाव था। वे अनेक पुस्तकों को अध्ययन अध्यापन में लगे रहते थे, परंतु इतना लगाव रहते हुए भी उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया। महाद की नगर पालिका ने अछूतों द्वारा चौदार तालाब का इस्तेमाल करने की छूट दी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने
दलितों को चावदार तालाब से पानी लेने के अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए संगठित किया। इसके सिलसिले में 19 और 20 मार्च 1927 को महाद में दलितों का 10,000 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित उन्होंने करवाया। इस सम्मेलन के अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने ऊंच नीच की भावना को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इसमें सवर्ण हिंदुओं और सरकार से दलितों के कानूनी अधिकार को वास्तविकता में बदलने की भी अपील की गई। सम्मेलन स्थल से ही डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों का एक जुलूस अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के लिए चावदार तालाब की ओर चल पड़ा। कुछ धर्मांध लोग जो थे उन्होंने इस जुलूस पे आक्रमण कर दिया। इससे क्या हुआ कि और दलितों का और अधिक सामाजिक शोषण होने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों से सार्वजनिक स्थलों से पानी लेने और मंदिरों में प्रवेश किए जाने के अधिकार के लिए फिर से संघर्ष का आह्वान किया। इसके लिए 25 दिसंबर 1927 को महाद में फिर से सत्याग्रह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था को गैर बराबरी का मूल स्रोत बताया। जाति विहीनता के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन के प्रस्ताव को उन्होंने सबके समक्ष रखा। इसी सम्मेलन में मनुस्मृति जलाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया, क्योंकि इसमें दलितों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक गुलामी को मान्यता दी गई। सम्मेलन में एक अन्य प्रस्ताव द्वारा यह भी मांग की गई कि हिंदू में पुरोहित के पेशे को लोकतंत्रीकरण किया जाए। अंततः सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसार 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति खुले आम आग के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मनुस्मृति एक साथ सवर्ण हिंदुओं के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र है और अछूतों के लिए दास्ता का बाइबल। मनुस्मृति को जलाने के अपने कदम के औचित्य को बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मनुस्मृति को जानबूझकर जलाया गया है। यह बड़ी सावधानी पूर्वक उठाया गया एक कठोर कदम है। यह कार्य सवर्ण हिंदुओं के ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया गया। समय समय पर ऐसे कड़े कदम उठाने पर जाते हैं। बिना दरवाजा खटखटाए कोई गेट नहीं खोलता है। मनुस्मृति ऐसा नहीं है कि निंदनीय है, यह गलत भी नहीं है। तथा मनु जो थे वो समाज शास्त्री नहीं थे या वो मूर्ख थे, ऐसा भी नहीं है। मनुस्मृति इसलिए जलाई गई क्योंकि हम इसे अन्याय का एक प्रतीक मानते हैं। ये एक अन्याय का सिंबल है। मनुस्मृति की शिक्षा से हम अपार गरीबी और ग्रहित स्थिति में रखे गए हैं। इसलिए हमने जान हथेली पर लेकर हमने इस पर आक्रमण करने का खतरा मोल लिया। मेरी इतनी ही यहाँ पे विचार था कि मनुस्मृति को क्यों जलाया गया, और इसमें मैंने अंबेडकर की बातों को ही कोट करने का काम किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुजाता सिंह को, जो कि स्कॉलर है पीएचडी प्रोग्राम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी पटना यूनिवर्सिटी की, और वो काला राम मंदिर सत्याग्रह के बारे में बात करें। थैंक यू मैम। Hello everyone, this is Sujata Singh, research scholar from Patna University. First of all, I would like to thank our HOD sir for providing me this opportunity. Today I would like to express my views regarding Kalaram Temple entry movement by Dr. Ambedkar for social justice. As we all know that social justice means equal social opportunities available to everyone to develop their personalities associated with equality and social rights. Dr. Ambedkar was the champion of social justice in India. In his opinion, the cause of injustice in Indian society is caste, and caste is created by the support of Hindu religion. He saw the Kalaram Temple Satyagraha in Nasik as an instrument of social equality struggle. Kalaram Temple entry movement formed a pivotal role in the Dalit movement in India. Dr. Ambedkar led a protest outside the temple on 2nd of March 1930 in order to allowing Dalits into the temple. The movement was to have a right to enter temple. It was more towards having equal rights. Kalaram Temple is a beautiful temple in Old Nasik area, built by Sardar Rangarao Odhekar in 1788. Thousands of pilgrims visit the village to take the blessings of Lord Rama. But until 1930, no Dalit or untouchable was allowed to enter the premises of the temple. This was because of the rigid caste system in India, which prevails even today
and is practiced since the Rigvedic period. According to Baba Saheb Ambedkar, in order to break the wall between the upper class and lower caste, it was important to get entry into the temple because temples have been considered a place of origination of caste annihilation. Thus, it became significant to break down the idea of entering the temple. For this movement, Kalaram Temple was chosen. It was this period when civil disobedience movement was initiated by Mahatma Gandhi and thus Satyagraha prevailed in the country. Dr. Ambedkar initiated temple entry satyagraha after 3 months of painstaking and meticulous effort in 1930. It was one of the non-violent movements where around 15,000 people had participated to get entry into the temple. The satyagrahis squatted before the temple singing bhajans, but a strong contingent of the Bombay police meted out the non-violent satyagrahis. The Bombay police was supported by the orthodox Hindus. These people considered it as an unholy act. Because of this attitude of their harsh treatment was given not only to the satyagrahis but also to the untouchables of nearby villages. Their kids were expelled from the schools, roads were closed for them, they were not allowed to buy articles of their daily needs from the local market. Despite these provocations, Dr. Ambedkar kept a check on his satyagrahis and did not allow them to retaliate. The movement was to have a right to enter temple. It was more towards having equal rights. Ambedkar in his speech on inauguration of Satyagraha said, "We don't want to go to temples though, but we should have rights." This Satyagraha continued for 5 years. This Satyagraha helped to remove the tag of untouchable from the head of the lower caste, giving them equal rights. Keeping his views regarding social justice, we can certainly conclude that he was no less a prophet who lived, inspired, and left a legacy for millions on this planet. That's all I wanted to say. Thank you. अब मैं डॉक्टर हिमेश मांझी को आमंत्रित करूंगी, जो कि रिसर्च ऑफिसर हैं डॉक्टर अंबेडकर चेयर पटना यूनिवर्सिटी के, और वो हमारे सामने अपना पक्ष रखेंगे बौद्ध धर्म की ओर। डॉक्टर अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो टॉपिक निर्धारित है बाबा साहब के बौद्ध धर्म की ओर, 14 अक्टूबर 1956 नागपुर महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख क्यों किया, इसके पीछे हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म की जो विसंगतियां, जिसके वजह से वो जिस दर्द से, जिस भेदभावपूर्ण, असमानतापूर्ण, गैर बराबरीपूर्ण व्यवस्था था उससे क्षुब्ध थे और उनको लगता था कि हिंदू धर्म कहीं न कहीं इसको छोड़ने का जो निर्णय था और विचार था वो पहले से ही पनप रहा था उनके मन में। 1935 से कहिए 1936 में उन्होंने एक किताब आता है उनका, इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया, उसको जाति का विनाश। तो इस तरह से लगातार उनके मन में कई सभा सम्मेलनों में कई धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के बाद वो हिंदू धर्म से धीरे धीरे उन्हें विरक्ति हो रही थी और वो किस प्रकार अंतर समझने की जरूरत है। जब वो 1920 BBC लंदन के इंटरव्यू में साक्षात्कार में वो अपना बात रखे थे कि आखिर हिंदू धर्म में क्या अंतर है, क्या चीज है कि हम हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म के तरफ रुख कर रही है, बौद्ध धर्म में चले जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि हिंदू धर्म में ईश्वरवाद है, आत्मा है, आत्मवाद है, चातुर्वर्ग व्यवस्था है, पुनर्जन्म है, गैर बराबरी है और जन्म के आधार पर जात पात है। ये तमाम चीज हिंदू धर्म में व्याप्त है और इन्हीं विसंगतियों को छोड़ करके उसके उलट, उसके विपरीत बौद्ध धर्म में नहीं है। वहाँ आत्मा नहीं, आत्मा और परमात्मा की बात नहीं है, वहाँ ईश्वरवाद नहीं है, वहाँ समानता की बात कही गई। तो वो ठीक 1956 को लगभग 5 लाख या उससे भी अधिक अपने समर्थकों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अपना रुख किया, बौद्ध धर्म अपनाए, बौद्ध धर्म के रास्ते पे चले गए और चले ही नहीं गए बल्कि देश दुनिया में संदेश दिया और अपने एक बौद्ध धर्म, बौद्ध थॉट, बौद्ध धर्म की स्थापना किया जो बौद्ध धर्म से बिल्कुल क्या कहिए मिलता जुलता है, बिल्कुल समानता है। जिस प्रकार बुद्ध और उनका धर्म लगातार, जिसमें हिंदू धर्म में जो वर्णित व्यवस्था था
कार्मिक व्यवस्था था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य, वैश्य के नीचे शूद्र, जो सभी को सेवा कर सके। तो कार्यों के आधार पे जो वर्णिक व्यवस्था था, चतुर्वर्णिक व्यवस्था के विरुद्ध वो अपना बौद्ध धर्म में समता, समानता, बंधुत्व, प्रेम पर आधारित व्यवस्था को अपना करके उतना ही नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि प्रज्ञा यानी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ प्रज्ञा, करुणा और समता, ये तीन जो उनका मूल थीम था, तीन विचार मार्गदर्शन के तीन इकाई थे। इस पर चल करके वो चाहते थे कि ये बौद्ध धर्म की ओर उनके जाने का जो रास्ता और प्रशस्त करता है, बुलंद करता है, उसकी ओर जाने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। जिसे हम लोग मानते हैं कि अम्बेडकर का जो बौद्ध धर्म है वो सहधर्म भी कहलाता है, और इसमें इंसान के बीच सारे सामाजिक दीवारों को तोड़ देता है। ब्राह्मण के वेदों के जो सामाजिक परिभाषा, उस परिभाषा को ये चातुर्वर्णिक व्यवस्था को तोड़ता है। कई और भी धर्मों को जानने का प्रयास किए, चाहे इस्लाम हो और चाहे सिख धर्म हो, कई धर्मों को उन्होंने, बाइबिल हो, कई गुरु ग्रंथ हो, कई चीज़ों को पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के उनके लेख, उनके पत्र पत्रिका भी आए, और आगे जाकर उन्होंने कहा भी था कि जन्म लेना मेरे बस में नहीं था, तो फिर मृत्यु मेरे बस में है, यानी जन्म से मैं हिंदू रहा, तो मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैं मरूंगा, मैं हिंदू में नहीं, ये तो मेरे बस में है। तो उन्होंने फैसला किया और इस फैसले के आधार पर बौद्ध धर्म को अपनाया। महायान करके बौद्ध धर्म का जो विभेदन है उसके बीच का मार्ग प्रशस्त किया, जिसको नव बौद्धवाद कहा जाता है, जिसको न्यू बुद्धिज्म कहा जाता है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सब ने सुनने का कष्ट किया, आग्रह किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुलेश मान जी। अब मैं प्रियंका कुमारी को, जो कि डॉक्टर अंबेडकर चेयर पटना यूनिवर्सिटी में है, उनको आमंत्रित करूंगी ताकि वो धन्यवाद ज्ञापन। Thank you, Priya. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. मैं किसी समुदाय की प्रगति, महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है, उससे मापता हूँ। By Dr. B.R. Ambedkar. Good afternoon, Chief Guest Dr. D.P. Manji, Director Dr. Ambedkar Foundation from Ministry of Social Justice and Empowerment. Respected Chair Professor Dr. Ramendranath, teachers, research scholars, PhD students, and my dear friends. I, Priyanka, stenographer at Dr. Ambedkar Chair, it is my proud privilege to deliver vote of thanks on behalf of Dr. Ambedkar Chair, Patna University, Patna, on this significant day. A sincere thanks to our esteemed Chief Guest, Shri D.P. Manji Sir, who in spite of his busy schedule accepted our invitation and graced this occasion, and who explained the concept of social justice according to B.R. Ambedkar and his struggle to achieve social justice. Thank you, sir, for availing other people to purpose of setting Ambedkar Chair in different universities. I would like to extend my thanks to Professor Ramendranath Sir, Chair Professor Dr. Ambedkar Chair, who continues to inspire us to work hard with zeal and dedication. My heartfelt thanks to all the PhD scholars, Pooja, Aradhna, Shruti Parmar, Sujata Singh, and Lalit, who have very enthusiastically presented their speech in this webinar on Ambedkar's struggle for social justice. I special thanks to Dr. Hulesh Manji, who elaborately explained why Dr. Ambedkar chose for Buddhism over Hinduism, Islam, and Christianity. A special word of praise and thanks to all the staff of Patna Diaries who worked hard to and making this webinar a grand success. Last but not the least, thanks to all the chair professors of different universities of Dr. Ambedkar Chair, participants, students for their wholehearted participation. Thank you, one and all, and have a pleasant evening. Thank you so much. Thank you so much, Priyanka.